Student, now today's video, see parallel lines and a transversal. A line which intersects two or more lines at distinct points, that is different points, is called a transversal. जब भी कोई एक लाइन दो या दो से ज़्यादा लाइन को इंटरसेक्ट करती है तो ऐसे लाइन को हम ट्रांसवर्सल कहते हैं. जैसे कि अभी लाइन यल है, ये लाइन एम और लाइन एन को इंटरसेक्ट कर रही है. सो दिस इज कॉल्ड ए ट्रांसवर्सल लाइन. ये आपकी ट्रांसवर्सल लाइन होगी. ठीक है. सो डेफिनेशन, ए लाइन विच इंटरसेक्ट्स टू और मोर लाइन्स एट डिस्टिंक्ट पॉइंट इज कॉल्ड ट्रांसवर्सल लाइन. इन फिगर, सी फिगर, line L, this line L intersects line M, this line M, and this is line L. M and line N at points P and Q. ये point P है, ये point Q है. So line L is intersecting line M and line N at two distinct points P and Q. Therefore line L is a transversal. तो ये तो आपकी ट्रांसवर्सल हो गई है. ठीक है. For line M और N के लिए. Observe that four angles are formed at each of the points P and Q. See here, at point P there are four angles. This number 1, 2, 3, 4. Four angles are formed. Similarly, at point Q also, this angle 5, 6, 7, 8. Here also there are four angles, and here also there are four angles. Now let us name these angles. Let this 1, 2, 3, 4, angle 5, angle 6, angle 7, and angle 8 as shown in figure. Now, when a transversal L intersects line M and N, then following pairs of angles are formed. As in previous video, you learned the pair of angles. Here also some pair of angles are formed. So, number 1 pair of angles is corresponding angle. See in figure, number 1, angle 1 and angle 5. Angle 1 and angle 5. Number 2, see in figure, angle 2 and angle 6. Angle 6. Number 3, angle 4 and angle 8. And fourth pair is angle 3 and angle 7. See in figure now, 1 and 5. This is 1 एंड 5. यानी ट्रांसवर्सल से एक ही साइड में, इस ट्रांसवर्सल के एक साइड में एक एंगल छोड़ के. सो 1, 5, ये 4, 8 हो जाएगा. ये 4, 8, ये क्या होगा 2, 6. वेयर इज 2, 6? दिस इज 2, 6. एंड ये 3 और 7. ट्रांसवर्सल के एक साइड में एक एंगल को छोड़ के. सो 1, 5, 4, 8, 2, 6 and 3, 7. These are called the corresponding angles. Okay. The next is alternate interior angles. Alternate interior angles. ये भी एंगल्स की पेयर्स देखो, इस एंगल्स की अल्टरनेट इंटीरियर एंगल. सो पहला पेयर है आपका एंगल 4 एंड एंगल 6. ठीक है. दूसरा एंगल 3 एंड एंगल 5. ठीक है. ये दोनों अल्टरनेट इंटीरियर एंगल. 4 और 6 देखो, 4 और 6 इंटीरियर बोला उसने. इंटीरियर में सी दोनों के ये दो लाइंस के अंदर का. तो ये 4, 6 अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स और 3, 5 की ये पेयर और 4 एंड 6 की पेयर, ये दोनों पेयर, ये जो पेयर है दीज आर कॉल्ड अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स. ये भी अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स है. देन नेक्स्ट देखिए अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स. अभी बाहर का अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स. अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल तो एंगल 1 और एंगल 7 देखो फिगर में. एंगल 1 एंड एंगल 7. 1 एंड 7. वेयर इज 1 और ये 7. यानी 1 इधर का बाहर का है एक्सटीरियर, ये बाहर का एक्सटीरियर. 1 एंड 7.
एंगल 2 एंड एक एंगल 2 एंड एंगल 8। ये देखो ये 2 ये बाहर का है और ये 8 भी बाहर का है। सो दीज आर कॉल्ड अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स। देन नंबर नेक्स्ट इज इंटीरियर एंगल्स। इंटीरियर angles interior angles on the same side of the transversal ठीक है। अभी ये वाले देखो एंगल 4 एंड 5 एंगल 4 एंड एंगल 5 सेकंड एंगल 3 एंड एंगल 6 एंगल 3 एंड एंगल 6। इंटीरियर एंगल चाहिए लेकिन सेम साइड में 4 और 5 देखो 4 5 एक सेम साइड एक ही साइड में इधर वाली साइड में इंटीरियर अंदर के है तो 4 एंड 5 इधर 3 एंड 6। So these are called interior angles on the same side of the transversal. Okay, then interior angles on the same side of the transversal are also called as consecutive interior angles. Interior angle जो है इनको consecutive interior angles भी कहते हैं। consecutive interior angles भी कहते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स। ओके, सो दिस अबाउट द पेयर्स ऑफ एंगल्स। ओके स्टूडेंट्स, now see what the axiom. See what the axiom. Axiom 6.3. If a transversal intersects two parallel lines, then each pair of corresponding angles is equal. This is the axiom. Axiom is a statement which cannot be proved, but we have to assume that. Practically we can say it, but there is no such a proof of this statement. So it is axiom. We have to assume that it is true. So if a transversal intersect two parallel lines, then each pair of corresponding angles is equal. Let us see the converse of this. Converse क्या होगा इसका? Take the converse of the if a transversal intersect two lines. Converse होगा if a transversal intersects two lines such that a pair of corresponding angles is equal, then the lines are parallel. Then the two lines are parallel. ठीक है। देखो हमारा एक्सियम क्या था कि अगर लाइन पैरेलल है तो करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होते हैं। ठीक है, करस्पॉन्डिंग एंगल्स हम एज्यूम कर रहे हैं अभी। लेट अस टेक द कॉन्वर्स ऑफ दिस। इफ a transversal intersect two parallels, अगर लाइंस पैरेलल है then each pair of corresponding angles is equal. टेक द कॉन्वर्स, अगर करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल है तो लाइंस पैरेलल है। So if a transversal intersect two parallel lines such that a pair of corresponding angles is equal, then the two lines are parallel. Okay students, so for this statement let us take the verification of the draw a line AD. ये लाइन मैंने AD निकाली है and mark point B and C. यहाँ पर B और यहाँ पे C मैंने मार्क किया है on this line AD. Okay, then at B and C, B और C के पास में एक एंगल निकालो ABQ, ये वाला एंगल। ठीक है, और सेम एंगल इतना ही एंगल एट पॉइंट C के पास में निकालो। ये दोनों एंगल हमने मेजर करके इक्वल निकाले हैं, वो दोनों इक्वल होना चाहिए। ठीक है, नाउ प्रोड्यूस ये जो QB है इसको बढ़ाओ। QB को इधर बढ़ा दिया,
ओके। और ये एस सी को भी इधर बढ़ा दिया अप टू आर तक, क्यू बी को अप टू पी तक बढ़ा दिया, ताकि हमको एक पी क्यू लाइन मिले और ये आर एस दो लाइन मिल गई है ना। नाउ यू मे ऑब्जर्व हियर दैट द टू लाइंस डू नॉट इंटरसेक्ट ईच अदर। यहाँ पे अगर हम इसको बढ़ाते हैं, जब एंगल्स इक्वल थे, अब ये लाइन को बढ़ा दिया है, इधर बढ़ाते हैं, तो दोनों कभी भी इंटरसेक्ट नहीं हो रही यहाँ पे, दे डू नॉट इंटरसेक्ट ईच अदर। You may also draw common perpendiculars to the two lines PQ and RS at different points also and measure the lengths. So अगर ये दोनों एंगल्स इक्वल लेते हैं हम और ये लाइन को बढ़ाते हैं, so they are not intersecting each other, it means the lines are parallel. मीन्स अगर ये एंगल्स, ये तो करस्पॉन्डिंग एंगल्स है, अगर ये करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल है तो लाइन्स हमारी पैरेलल होती है। If the pair of corresponding angle is equal, then two lines are parallel. इसी का एक एक्सियम है कि अगर लाइन पैरेलल होती है तो करस्पॉन्डिंग एंगल्स हमेशा इक्वल होते हैं। तो जैसे अभी हमारे पास भी ये लाइन है और ये दूसरी लाइन है एल एम, और ये हमारा ट्रांसवर्सल है सपोज टी। ओके स्टूडेंट, तो करस्पॉन्डिंग एंगल्स ये वाला होगा, तो ये हमेशा इक्वल होता है। ठीक है, जैसे ये वाला और ये वाला, दिस इज ए पेयर ऑफ करस्पॉन्डिंग एंगल, ये भी इक्वल रहेंगे कब, अगर ये दोनों लाइन पैरेलल है तो। सो स्टूडेंट, दिस इज द एक्सियम व्हिच इज वेरी वेरी यूजफुल टू गिव द प्रूफ ऑफ द अदर थ्योरम। सो रिमेंबर ऑलवेज, इफ ए लाइन ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट टू पैरेलल लाइंस, देन द पेयर ऑफ करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर ऑलवेज इक्वल। यहाँ पे 1 का पेयर ऑफ करस्पॉन्डिंग एंगल ये 2 होगा, ये हमेशा इक्वल होगा। ये अगर 3 है तो ये 4, ये भी इक्वल होगा। ये अगर 5 है, ये 6 है तो ये भी इक्वल होगा। ये 7 है, ये 8 है तो ये भी 7, 8 इक्वल होगा। ओके, सो करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर ऑलवेज इक्वल इफ टू लाइंस आर पैरेलल। ओके स्टूडेंट्स।